Hello, everyone. Yeah, this is the second Insta Live that I'm doing. My name is Deepika, and my Insta handle, as you can see, is Ease, Joy, and Glory. I am into wellness, and I am a co founder of an entity called Healing Hubba. And apart from that, I've been in social sector for good 20 years. And today we're doing a call on access consciousness. सो दोज ऑफ यू हु नो मी, आप में से जो लोग मुझे जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं काफ़ी सारे वर्कशॉप्स अनाउंस करती हूँ एंड जो एक्सेस बार्स पे होते हैं, और आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल भी होते हैं, है ना. देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट यू ऑल कम अप विद as to what is access consciousness, and what happens by doing bars and stuff like that, or after this what do we do. So today I thought, and I've been sharing that with you all, but today I thought, why not get somebody along with who can share a bit more about what access bars are, what access consciousness is, and give a little more wider perspective on it. So I would like to invite with me Arshia Seth, and Arshia is a health and wellness coach, and she has been into this for quite a long time now, and she is a certified consciousness facilitators. Kind of go through a lot of processes before they get certified as access consciousness facilitators. So today we will speak to Arshia as to what is it that access consciousness can add to their lives. And I've invited her. I'm just waiting for her to accept the invite so that we could start. And I see Mudassar is watching and there's somebody else. So hello, Mudassar. And please feel free to post your comments. I am trying to again invite Arshia. I can see she's here, and her handle is wellness with Cheese Parsh. And let's see if she can join us and we can take this conversation ahead. So, Arshia, you have joined here on the call, and yes, but I am still not able to see you on the camera, on the live. So, yes, Mudassar, and I hope और भी लोग हों जो साथ में जुड़ सकें. So, maybe let's just check the internet connection if the camera is not coming up. Can you hear me, Arshia? You could just message me here. Okay. Let's try, and let me just see if I can invite you once more. Yes, I am sending you the request again first. Okay. Let's see. And I hope more and more of you could join, those who are interested in. Yes, now I Hi. think I can. Hello. I am yet to see you. I can hear you, and I can also see that you have turned on your camera, but I Can still you hear me cannot see now? you. I can hear you. You're audible. And can you see me too? Not yet. Not yet. I cannot No, see you. my I camera saw the is message that on. you have turned on your camera, but Yeah, my camera is on. yes, it's showing that your camera is on, but it's still not Yeah, okay. Okay, I wonder now. Can you see me now? Can you see me now? not yet. It's All not yet. right. Okay, what's up? What's going on? Okay. Okay. Uh, Okay. Can somebody why help? don't you decline and I invite you again? Yeah. Please do that. Please do that. Yeah. Okay.
Yes. Yes, finally. Yes. Can Finally. you How was see both of us? you mean, can you I, see I both? still cannot. Okay, Mudassar can see both Yes, of us. Mudassar. Thank you, Mudassar. Thank you for that Thank you so much. affirmation. Thank Thank you for you. confirming to us. Hi, Deepika. So lovely to be here, and thank you for inviting me here. Thanks for Uh, joining. yeah, and for this amazing conversation on conversation de la consciousness. Yes. Welcome to the call, Nasir, as well. I'm so glad very old friends and colleagues have joined for this. I'm Really? so happy to see you. How did we get so lucky to have you here, people? And thank you so Yes, much for joining us. And thank you for joining this conversation on consciousness. Yes, consciousness happens to be infectious, and we are kind of the seeds of consciousness. I and Deepika, who are already, I'm sure others are also, it doesn't mean that there has to be one way of consciousness, but we are these sprouting seeds of consciousness who are bringing this conversation to you, that how consciousness can actually invite more possibilities, more fun, more joy, more enthusiasm of living in your life. absolutely. Yeah. And with that, Arshia, like, and I'm sure that everybody, I think every living being on this planet aspires to have higher consciousness from wherever they are. Yeah. I truly believe in that, that even a tree and a plant is seeking higher consciousness. Animals are seeking higher consciousness, and so are. And as I say that, my dog also joins the call. Mine He is just yet to join in. Mine is yet to needed to, join in. yes, yes. So, yeah, everybody is seeking higher consciousness, and each one of us kind of explores different way of, accessing our higher consciousness in our life. So, would you like to share with us what is access consciousness and how kind of that can add to our life? And within access consciousness, if we could start first with, say, um yeah, a bit about access consciousness, and after that, if we can get into access bars, and if you can really get into that, how, if we choose access bars, how can it transform our lives? Like, what are the possibilities that it unlocks for us? Sure. I'm going to take a minute just to be off camera for a second while you speak, Arshia. All right. That's all right. Okay. So yes, till Deepika joins us back with her video on. Thank you, Nasir and Mudassar, for being here. Uh, Consciousness, like Deepika said, every being is, seeking consciousness. Maybe not in its truest sense. Not many people know what actually consciousness is all about. What actually accessing your consciousness can turn your life into. Consciousness is this amazing way of living life on the planet that we are in, the beautiful planet Earth that we are in, where you choose to be this space of joy every moment, where you choose to be this space of ease. Even if it is not every moment ease and joy, you still choose it, because that's how subtle the consciousness is. That's how subtle the human life can be. On the contrary, when people are not choosing consciousness, they do a lot of other things which actually take them farther away from consciousness. So I wonder if yes, the beings, animals, and those other beings which are not really the human species, they are definitely seeking consciousness, and they are also being aware of it. Human beings, unfortunately, do not allow themselves to access consciousness because they're so caught up with their day to day life, the drama, the trauma, the intrigue, and the upset of their everyday life, that actually takes them away from consciousness, and in turn gives them more and more of what they are already doing. And that, what does it create in their life is Yeah.
more of upset, intrigue, drama, trauma, more of unhappiness, more of joy eluding them all the time, more of all those things, pain, agony, intensities in the body, intensity in the mind, and all of those things. And then they want to get rid of it. They want to, I'm so not liking it. I want to go beyond this. I'm not happy with this. Yet, are they doing something about it? Are they really actually choosing to access their own consciousness, which can actually navigate them through, show them the way of how they can have a life of ease and joy? Thanks, Arshia. That's like a lot that you shared. And I would also take the opportunity to share a bit in Hindi. So, uh, and also kind of welcome Janvi and somebody with the handle cosmetologist, doctor. So, welcome to this call. And, you know, अपनी खुद की चेतना, एक एक हायर चेतना को पाना या उसको समझ पाना, वो सभी लिविंग बीइंग्स चाहते हैं, सभी, चाहे वो जीव जंतु हो, प्राणी हो, पेड़ हो, सभी चाहते हैं। हम एज इंसान जो हैं, हम अपने को रोकते रहते हैं वो हायर, अपनी ही चेतना के साथ जुड़ने के लिए, वो किसी और की नहीं, पर अपनी ही चेतना के साथ जुड़ने के लिए भी हम अपने आप को रोकते रहते हैं, क्योंकि हम इतने बिजी हैं रोज बरोज की, जो ड्रामा चल रहा है हमारी लाइफ के अंदर, जो सब चीजें हो रही हैं, वो हमको उसमें लिप्त कर लेती हैं। और चाहे लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, पर अगर हम सचेत हैं तो हम चुन सकते हैं कि क्या हम उस मोमेंट में फिर भी शांत रहेंगे या जॉय चूज करेंगे, या फिर हम भी अगर कुछ हो रहा है जो कि काफी खराब चल रहा है, हम भी उसी ड्रामा के अंदर जुड़ जाएंगे और अपनी लाइफ में भी वो ड्रामा को ले आएंगे। तो बहुत ही संक्षिप्त में ये बात कही। एंड ये ड्रामा की और ट्रॉमा की हमको आदत हो जाती है, ये पेन की हमें आदत हो जाती है, और हमको लगता है कि यही हमारी लाइफ है। वेयर एल्स अगर हम कॉन्शियस हैं, अगर हम सचेत हैं, तो हम हर मोमेंट के अंदर बहुत ही कॉन्शियस वे में आनंद चुन सकते हैं, शांति चुन सकते हैं, है ना। बहुत ही ग्रेसफुली काफी सारी चीजें हम अपनी लाइफ में चुन सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को रोकते रहते हैं। एंड स्पेशली मतलब ह्यूमंस को कहा जाता है कि वी आर द मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशीज एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? बट वी एज ह्यूमंस आर रियली एक्सपर्ट एट stopping ourselves from accessing our own consciousness. I think that was really very powerful, that how कैसे हम अपने आप को रोकते हैं कि हम अपने एक बड़ी चेतना के साथ जुड़ सकें, या ज्यादा जागरूक हो सकें, अवेयरनेस ला सकें, उससे हम अपने आप को रोकते हैं। इसके लिए थैंक्स फॉर दैट। बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना, दीपिका, कि एज अ ह्यूमन स्पीशी, एक मनुष्य जीवन में जब हमने इस धरती पर अवतरित हुए हैं, तो सहजता और आनंद के लिए ही आए हैं। पर वो सहजता और आनंद हमसे दूर नहीं भाग रहा है, हम उससे दूर भाग रहे हैं। इंसान, मनुष्य उससे दूर भाग रहा है। सहजता और सहजता, जिसको हम ईज बोलते हैं, तो वो सहज जीवन और आनंद पूर्ण जीवन है, हर एक के लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है। पर उसको अपने साथ जोड़ने के लिए, उसमें स्टेप इन करने के लिए, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए इंसान भागा फिर रहा है कि उससे दूर कैसे भागे। And that is exactly what accessing your consciousness teaches you. अपने सजगता की पकड़, पहले उसको पकड़ो, वो तुमको अपने आप पकड़ लेगी। वो तुम्हारी जो चेतना, जैसे कि दीपिका ने बोला, आपके अचेतन मन में वो सारी चीजें, वो सारी फाइलें हैं, जहां पे वो वाली फाइलें हैं जिसमें आपने बेहद आनंद भी महसूस किया है और बेहद पीड़ा भी महसूस की है। Pain and happiness, both files are stored there. Yeah. And what keeps coming up is the file of pain, is the file of intensity, is the file of agony. So you go on repeating those files over and over again over lifetimes. तो अब अगर इस जीवन में आपको कहीं से भी कुछ भी ऐसा मिलता है, एक जरिया मिलता है जहां पे आप अपनी चेतना को और जागरूक कर सकते हैं, अपने आप को जागरूक कर सकते हैं, तो ये मौका है।
कि उन पेन वाली फाइल्स के आगे जाना है, बिकॉज पेन इज नॉट द वे ऑफ लिविंग लाइफ। और आपको पता ही है कि वो जब पेन पहले मानसिक लेवल पर होता है, भावनात्मक लेवल पर होता है, और फिर जाके वो आपके शरीर में दिखता है, आपकी बॉडी में दिखता है, इन द फॉर्म ऑफ वेरियस डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स। मनुष्य जीवन या मनुष्य शरीर रोगी होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सो ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या बन सकते हैं कि उल्लास से भरपूर हो ये जीवन, आनंद से भरपूर हो ये जीवन, और बहुत बहुत सहज हो। सहज मतलब ईज। जीवन को प्रॉब्लमैटिक और जीवन को परेशानियों से भरा खुद मनुष्य ने बनाया है। ओके ये तो काफी सारे आइडियाज हमें क्या कहते हैं, शायद जल्दी गले से नहीं उतरेंगे, क्योंकि दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं, स्पेशली मेरे यहाँ पे जो कॉलीग्स जुड़े हुए हैं, जिस सेक्टर में हम लोग डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं, और हम इतना कुछ देखते हैं, हमको लगता है कि जैसे ये दुनिया में बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। एंड तो ना आई कैन ओनली से इंसाफी, फ्रॉम माई दीपिका, तो ना इंसाफी देखोगे और ना इंसाफी को ही अगर सच मान लोगे तो जीवन में आने क्या वाला है? मोर एंड मोर ऑफ ना इंसाफी, राइट? सो माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। ओके इसलिए जो दिख रहा है उसको सच ना मान के खुद का सत्य क्या है उसको ढूंढिए, उसकी पहुंच, उसकी तरफ पहुंचिए, और आप देखेंगे कि जो बाहर दिख रहा है वो फौरन बदल जाएगा। वन वो इज एज इफ वन इज नॉट टू एक्सेप्ट दैट, यानी उसको स्वीकारना नहीं है। दूसरा जो है कि हम एक नई रियलिटी बना सकते हैं, इसमें विश्वास रखना। हाँ एंड जो एक्सेस कॉन्शियसनेस बहुत बात करता है कि हम इस रियलिटी को बदल नहीं रहे, हम एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। और जो इस दुनिया में कई लोगों ने किया है ना, उन्होंने बिल्कुल नई परिभाषाएं दी हैं, जो जो जीवन के लिए, मतलब समानता की परिभाषा भी उसी तरह की है, न्याय की परिभाषा भी उसी तरह की है। तो हम एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम इसी रियलिटी के अंदर, जो हमें सही नहीं लग रही है, उसमें लिप्त ना हो जाएं, है ना? स्वीकारना नहीं है तो नकारना भी नहीं है, दीपिका, क्योंकि या वो स्वीकार और नकार में ही अंतर्द्वंद चालू होता है, फाइट चालू होती है। और फाइट, प्लीज नो पीपल, बाहर आप बाहर बाद में लड़ते हैं, पहले खुद से लड़ाई करते हैं। तो वो जो लड़ाई है वो ही आपको उलझा के रखती है अपनी रोज की चीजों में और आगे नहीं बढ़ने देती है। तो उस लड़ाई को रोकने के लिए क्या करें? सबसे पहले उस लड़ाई को रोकने के लिए ये एक मन बना लें, ये एक दृढ़ संकल्प ले लें कि मैं अपनी चेतना को अब छूना चाहता हूं या चाहती हूं। मैं अब अपनी चेतना से परिचित होना चाहता हूं, क्योंकि चेतना हम सबके अंदर है। वी एब्सोल्युटली। ऑल आर conscious beings, we all are conscious beings. It's just that for a lot of people it is just lying dormant. It is there. There is not a single being on the planet, I'm not only talking about humans, there's not a single life on the planet that is not conscious. So या when you know that everybody has this element of consciousness available to you, what keeps you from not accessing it? What keeps you from not having a life of joy and ease and glory? Like पूरा जीवन जब हमें सहजता, सजगता, उल्लास, हर्ष और महिमापूर्ण मिल सकता है, हमारे लिए उपलब्ध है, तो फिर हम क्यों उससे भागते हैं और अपने आप को लड़ाइयों में और अंतर्द्वंद में और बाकी फालतू की चीजों में उलझाते हैं? फिर एक और नया जीवन लेने आना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं किया तो दोबारा आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से मैं ये मानती हूँ जीवन कोई पनिशमेंट नहीं है। जीवन में बहुत कुछ है जो अगर आप अपने आप को अलाउ करें, अपने आप को ये परमिशन दें, तो आपको जीवन की वो खूबसूरती नजर आएगी। ओके एंड उसके या लिए Deepika is a bars facilitator. I am also a bars facilitator, higher classes facilitator with this organization called Access Consciousness, which is a body from USA, operating in 3 continents, in 180 countries, and there are 80
above 80,000 bars practitioners all over the world in 180 countries who have made their life easy by using this unique technique, by using access bars. Now, what is access bars? Access bars is actually 32 points on your head. उन 32 पॉइंट्स को बार्स नाम दिया है. वो 32 बिंदु आपके जीवन की पूरी चालक जो है जीवन का, वो परिवर्तित कर सकते हैं. उनमें वो ताकत है. वो 32 बिंदु वो है जहां पे वो सारी चीजें आपने स्टोर करके रखी हैं जो आपके लिए अब काम नहीं कर रही हैं. So those 32 points have the memory and the electromagnetic charge of all of those things that have never worked for you in the past lives and are not working for you in this life too. So what are we doing here? We are here showing you the way. We are here telling you the path, that if you access your higher consciousness through these 32 points, where the first thing that you do is you release the electromagnetic charge of everything that's not working for you. So घर में अगर कचरा इकट्ठा हो जाए और बहुत टाइम तक उसकी सफाई ना हो तो क्या होगा? स्मेल आएगी, बदबू आएगी, गंदगी होगी. वही ऐसा ही कुछ हमारे जीवन के साथ होता है. वो सारी चीजें दिखने लगती हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, जैसे कि बीमारियां, तकलीफें, शारीरिक, मानसिक और इमोशनल, मेंटल, फिजिकल इम्बैलेंसेस, खुद के साथ झगड़े, बाहर झगड़े, रिलेशनशिप्स में इम्बैलेंसेस, रिलेशनशिप्स में डिसहार्मनी, मनी रिलेटेड इश्यूज, फाइनेंसेस रिलेटेड इश्यूज, ये काम नहीं हो रहा है, वो नहीं, शिकायतें एंड कंप्लेन्स एंड कंप्लेन्स एंड कंप्लेन्स. बट आप ये कंप्लेन कर किसको रहे हो? एक बार सोच के देखो, ये कंप्लेन किसको कर रहे हो? क्योंकि जब यूनिवर्स को कंप्लेन करोगे तो वो तो वापस ही कंप्लेन और देने वाला है. सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भेजोगे वही वापस आने वाला है. तो सोच के देखो, जब कंप्लेन कर रहे हो तो ज्यादा और कंप्लेन्स बढ़ती जा रही हैं, कुछ बदल नहीं रहा है. तो अब एक ही सवाल करो, चलो मैंने देखा मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. सारी प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बना लो और उनको अच्छे से देखो. ठीक है? अब अपने आप से ये सवाल करो, प्रॉब्लम्स है, मुझे दिख रही हैं, अब मुझे ये बताइए इनको मैं बदलूं कैसे? क्योंकि अगर प्रॉब्लम की ही बात करते जाओगे तो प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाइज प्रॉब्लम्स. सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो दोगे वही वापस आने वाला है. यूनिवर्स only gives you what you reflects. It just reflects back. What you send reflects back to you. So जब खुशी दोगे तो कई गुना खुशी और आनंद आएगा. जब सहजता दोगे तो वो आएगा. जब धन्यवाद दोगे तो ऐसे मौके आएंगे जीवन में, ऐसी चीजें आएंगी कि और ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद दे सको. पर अगर ये चीजें नहीं आ रही हैं और जीवन में लग रहा है यार प्रॉब्लम एक थी अब 4 हो गई है, 4 की 8 हो गई, मतलब आप यूनिवर्स में क्या दे रहे हो उस पर ध्यान दो. अगर यूनिवर्स में सिर्फ शिकायतें दे रहे हो, रोते रहते हो हमेशा, मेरा ये हो गया, मेरा वैसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरी तो लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो यूनिवर्स ने आपको वही भेजा है मल्टीफोल्ड्स. तो 4 थी, 8 हो गई, 8 की 12 हो गई, 12 की 16 हो गई. अब अपना ऑपरेटिव स्टेट बदलो, अपने जीवन चालक को बदलो. जो भी आपके जीवन का ड्राइवर है उसको बदलो. बाय द वे, आपके जीवन का ड्राइवर कौन है? कौन है जो आपका जीवन चला रहा है? हु इज द ड्राइवर? एनीबॉडी? कमेंट्स में लिखिए अगर पता है कि जीवन का ड्राइवर कौन है. अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ, आप खुद अपने जीवन के ड्राइवर हैं. तो गाड़ी तो अच्छी नहीं चला रहे हैं आप, इसलिए क्योंकि इतनी टक्करें हो रही है, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रही है, राइट? मजा भी नहीं आ रहा है गाड़ी चलाने में. तो अब टाइम आ गया है कि गाड़ी चलाना सीखें. कैसे? वेल, लिविंग योर लाइफ इन अ डिफरेंट वे. दैट इज व्हाट कॉन्शियसनेस डज. आपको आपके जीवन जीने का एक बिल्कुल ब्रांड न्यू तरीका देती है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया. यस, आपकी फैमिली ने भी नहीं बताया है, आपके माता पिता ने भी नहीं बताया. क्यों? क्योंकि उनके पास भी नहीं है. आपके
घर वालों ने, आपके माता पिता ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, परवरिश दी है, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ दिया है, पर वही दिया है जो उनके पास था। जो उनके पास भी नहीं, वो आपको कैसे दे सकते थे, राइट? तो अब ये जो तकनीकी है वो आपको ये सिखाती है कि कैसे आप अपना जीवन सजग और सहज तरीके से जिएं और अपने जीवन में इनवाइट करें, आमंत्रित करें उल्लास, प्रचुरता, हर्ष, महिमा, वो सब कुछ जो आप चाहते हैं जीवन में, जॉय, ईज, मनी, अबंडेंस, एवरीथिंग। करेक्ट? शिकायत तो उसी बात की है, राइट? तो Yeah. उसके लिए अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। अभी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है शिकायत की, या हमेशा परेशान रहने की, हमेशा गुस्सा करने की, चिल्लाने की, डर के रहने की, वो सारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लोअर हार्मोनिक वाइब्रेशंस है, बहुत ही निचले स्तर की ऊर्जाएं हैं। तो अगर वो सब कुछ चाहिए जो ऊंचे स्तर पर है, अपनी ऊर्जा को ऊंचा करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर इंसान चाहता है मेरा जीवन बदल जाए, मेरे जीवन में सारी सुख सुविधाएं आ जाए, मेरे जीवन में खूब धन आए, सब चाहते हैं ना, हाँ कि ना? करेक्ट? तो आपको ये समझना पड़ेगा, सुख सुविधाओं, धन, खुशी, समृद्धि की एक वाइब्रेशन है जिसपे आप अभी नहीं है। तो इस वाइब्रेशन पे आने के लिए कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जहां पे आप अपनी वाइब्रेशन यहां तक लाएं। जब इससे वाइब्रेशन मैच होगी, वो सारी चीजें अपने आप आएंगी। पर जिस वाइब्रेशन पे आप अभी हैं, वहां पे बैठे बैठे अगर आप चाहें मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, साथ में शिकायतें चल रही हैं, गुस्सा चल रहा है, दूसरों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, खुद को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जजमेंट आ रहा है, तो वहां पे ये चीजें उपलब्ध नहीं है। वहां पे सिर्फ उन निचले स्तर की चीजें ही उपलब्ध है। तो सबसे And पहले मुझे Akshay, if I can just add here कि ये सारी चीजें जब हम किसी भी और तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो अपने आप से बहुत जूझना पड़ता है ना, अपने ये लिमिटिंग थॉट्स एंड बिलीव्स का सामना करना पड़ता है। बट एक्सेस बार्स की मोडालिटी या जो पूरा बॉडी प्रोसेस है हम कहेंगे, और उसमें इस तरह के टूल्स हैं कि जब आप उसे करते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप डेसिपेट होने लगती हैं, अपने आप एक तरह से मेल्ट होने लगती हैं, और एज कई बार मुझे बाय लगता है कि मैजिक, पता भी नहीं चलता है। हाँ, बिल्कुल या आपको आपको उसका मतलब आपको अपने आप को कन्फ्रंट नहीं करना पड़ता, आपको अपने आप का सामना नहीं करना पड़ता, और ये चीजें बदलने लगती हैं। एंड मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि बहुत दिनों बाद जब आप सेम परिस्थिति में वापस जाते हैं, तब आप देखते हैं कि मेरा रिस्पॉन्स अब बदल गया है। पहले जिस जिस परिस्थिति में शायद आप चीखते चिल्लाते, अब आप उस परिस्थिति के ना शायद मुस्कुरा के या एक पर्टिकुलर चीज सोच करके आप वहां से निकल लेते हैं, आप वहां वो या आप वो परिस्थिति को बदल देते हैं। बिल्कुल। तो तो बहुत ही परिस्थिति सहज बदलना, तरीके से बदलाव आ सकता है। करेक्ट, तो परिस्थिति बदलना। थैंक यू मुदस्सर जी, आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप बाद में ये बाकी का लाइव जरूर थैंक यू। देखिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सो बिल्कुल परिस्थिति बदलना मतलब हमारे साथ हाथ में है, राइट? पर हम में से, पर कितने, आप में से कितने लोगों ने ये भी निर्धारित कर लिया है, डिसाइड कर लिया है कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे जीवन में तो कोई बदलाव आ ही नहीं सकता, मेरी तो इतनी प्रॉब्लम्स है कि मेरा तो कुछ बदल ही नहीं सकता। यहाँ पे हथियार डाल दिए हैं, ये जान लीजिए, आप ड्राइवर हैं, गाड़ी आप कैसी चला रहे हैं ये आप खुद देख लीजिए। इसलिए ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो जीवन में बदली ना जा सके। जहां भी आपने ये सोच रखा है, निर्धारित कर लिया है दैट मेरे पास तो कोई चुनाव ही नहीं बचा जीवन में, मेरी जीवन में इतनी मजबूरियां हैं, वो सबसे बड़ा झूठ है जो आप अपने आप को दे रहे हैं। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस इन योर लाइफ, and when you choose, when you decide, yes, I'm going to change my life, I am committing to the change in my life, the change appears, those people appear, those energies appear जो आपको चेंज का रास्ता दिखाएंगे। और शायद हम दोनों इसीलिए यहाँ पर हैं, करेक्ट? प्रोवाइडेड यस। आप जानना चाहते हो। सो जैसे कि मैं बता रही थी, 32 पॉइंट्स ऑन योर हेड, 32 बिंदु, और हर एक बिंदु आपके जीवन के एक हिस्से से जुड़ा हुआ है। Each of these points is actually corresponding to one area of your life.
तो अगर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, धन आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, रुकता नहीं है तो टिकता नहीं है, ऐसी अगर मनी रिलेटेड इश्यूज हैं, और तो जान लीजिए कि मनी का एक पॉइंट है, मनी का एक बिंदु है। वहां पे कुछ ऐसे बिलीफ, जैसे कि अभी दीपिका ने बोला बिलीफ सिस्टम, वो क्या है, वो संस्कार है जो आपके अंदर डाले गए हैं, जो आपके लिए काम नहीं करते हैं। और इसमें से सबसे ज्यादा जो कॉमन संस्कार है, सबसे ज्यादा प्रचलित जो संस्कार है, वो ये है कि पैसा हमेशा मेहनत से ही आता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसा लाने के लिए। मनी कम्स द हार्ड वे। नो, वो वो जो एक संस्कार बैठा हुआ है, उसकी वजह से ये कभी सोच के देखा है कि सबसे ज्यादा मेहनत तो वो इंसान करता है जो पत्थर तोड़ रहा है, सबसे ज्यादा मेहनत तो वो इंसान करता है जो बिल्डिंग बना रहा है। तो मेहनत तो बहुत कर रहा है वो, क्या उसके पास इतने पैसे हैं? नहीं। इसके लिए बहुत जरूरी है जानना कि मेहनत से पैसा नहीं आता है। मेहनत मतलब जो आप कर रहे हैं काम, वो आप छोड़ते नहीं है, काम आप कर रहे हैं अपना, पर काम के साथ साथ क्या आप धन को चुन रहे हैं, धन का चुनाव कर रहे हैं, धन को आमंत्रित कर रहे हैं और धन को ग्रहण कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड रिसीविंग। तो क्या करते हैं जब ये 32 बिंदु खुल जाते हैं इस एक दिन की वर्कशॉप में, जिसका नाम है एक्सेस बार्स वर्कशॉप, जो दीपिका जी कल कर रही हैं दिल्ली में 24 तारीख को और 24 फरवरी को, और मैं कर रही हूँ मार्च में दिल्ली में 14 तारीख को। तो आप जिस भी वर्कशॉप में जाना चाहें हमारे साथ आप संपर्क कर सकते हैं। और जो मेरी दूसरी वर्कशॉप्स हैं, एडवांस वर्कशॉप्स हैं, एक्सेस एनर्जेटिक फेसलिफ्ट और फाउंडेशन, जिन्होंने बार्स कर लिया है वो फाउंडेशन भी कर सकते हैं, वो भी दीपिका से संपर्क करें, क्योंकि वो मेरी होस्ट हैं मेरी एडवांस क्लासेस के लिए। राइट दीपिका? यस, यस, एंड थैंक्स आशिया, इतना विस्तार से बताने के लिए काफी सारी चीजें। एंड मैं एक ही बात अंडरलाइन करना चाहूंगी कि ये सारा बदलाव हम अपने आप में भी ला सकते हैं, और वो भी बहुत सहज तरीके से ला सकते हैं। उसके लिए हमें अपने आप में हम में क्या गलत है, उसके लिए हमें अपने आप को मारना पीटना नहीं है। हम अपने आप के साथ भी बहुत ही प्यार से ये सारा कुछ बदलाव ला सकते हैं। और जब आप ये एक्सेस बार्स क्लास के लिए आते हैं, तब आप यही देखेंगे कि आप लेटे हुए हैं और आपके बार्स चल रहे हैं और आप चला रहे हैं और उससे बदलाव आ रहा है। करेक्ट। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो ही बदलाव आएगा, या मेरे में क्या गलत है मैं उसको बाहर निकालूंगी और उसको रगड़ रगड़ के साफ करूंगी तो मुझ में बदलाव आएगा। नहीं, आपको आपको अपने इस आप के साथ बिल्कुल। आपको इस एक दिन की वर्कशॉप में पूरा एक टूल बॉक्स मिलता है। तो ये जो या वर्कशॉप होती है पूरी 8 घंटे की होती है। इसमें थ्योरी भी है, इसमें प्रैक्टिकल भी है, इसमें 4 सेशंस होते हैं जिसमें आप बार्स रिसीव करेंगे और किसी और के लिए बार्स रन भी करेंगे। तो बार्स रन करेंगे मतलब उन 32 बिंदुओं को जो चलाने का तरीका है वो सीखेंगे, और सिर्फ उनको टच करने से आप महसूस करेंगे, आपको वर्कशॉप के अंदर ही इतनी ज्यादा लाइटनेस फील होगी, इतना ज्यादा हल्कापन महसूस होगा, जैसे कि बहुत बड़ा जिंदगी का बोझ आपने उतार दिया हो। तो इस पूरी 8 घंटे की वर्कशॉप में आपको एक नई जीवन शैली बताई जाएगी जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई है प्लेनेट पे, कि जीवन किसी और तरीके से भी जिया जा सकता है। बेसिकली आप जो जीवन अभी जी रहे हैं वो आपने देखा है और सीखा है अपने परिवार से, अपने माता पिता से, उन्होंने सीखा है उनके माता पिता से, और उन्होंने सीखा है उनके। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसे एक गिफ्ट की तरह, एक लेगेसी की तरह आपको मिलता चला आया है। बट अब ये आपके लिए काम नहीं करता है, नहीं कर रहा आपके लिए काम। सोच के देखिए, आज आईफोन 15 के जमाने में अगर मैं आपको पुराना नोकिया का फोन दूं, आप इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतना ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। करेक्ट। सो अब शायद वो जीवन जो आपके माता पिता के लिए, आपके दादा दादी के लिए या परदादा दादी के लिए, उन लोगों के लिए काम करता था, वो आपके लिए काम इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज नाउ यू नीड टू अपडेट योर लिविंग सिस्टम। सो आपको पता है, आप अपने गैजेट्स, आप अपनी जीवन जीने का तरीका, लाइफस्टाइल चेंजेस, जो एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय, वो सब आप बदल चुके हैं। यू वांट द लेटेस्ट थिंग्स that are being introduced in the market. It is the market of consumerism, right? So वो बिल्कुल। consumerism का मार्केट आपको हमेशा उलझा के रखता है बाहर की दुनिया में। खरीदो खरीदो, पैसे डालो खरीदो।
और लोगों को लगता है कि ये पैसे करने डालने से और खरीदने से, शॉपिंग करने से हमारी तकलीफें थोड़ी कम हो जाएंगी। नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। इसलिए बाहर के बजाय अंदर, भीतर की तरफ देखना शुरू करिए। और वो ये तकनीक, ये एक दिन की वर्कशॉप आपको पूरी तरह से सिखाती है कि अंदर से कैसे वो सारी चीजें स्थापित करें कि आपका बाहर का जीवन खुशहाल बन जाए। आपको भागना ना पड़े किसी चीज के लिए, खुद ब खुद चीजें खींची हुई चली आए, इंक्लूडिंग मनी, including all of those luxuries that you desire in your life. So this is this one day workshop. You can inquire from Deepika. You can inquire on wellness underscore with underscore cheesepush, which is my Insta handle. You can send us a question. And I also do live on my Insta handle every Sunday 9:30 p.m. 9:30 to 10 p.m. which is a gift live session. आप चाहें तो उस पर आ सकते हैं, और उसमें मैं बहुत सारी ऐसी टूल्स और सजग बातें करती हूँ, वो चीजें आपसे शेयर करती हूँ जो आपके जीवन को आसान बना सकती हैं। तो ये एक दिन की वर्कशॉप जब आप करते हैं, आप खुद धन्यवाद देंगे कैसे आपकी पूरी लाइफ बदल चुकी है, क्योंकि आपको दिखेगा। आप चाहें तो आप टेस्टिमोनियल्स जाके देख सकते हैं, मेरी तो वेबसाइट पे है, आई एम श्योर दीपिका के भी होंगे। तो आप हमारी वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं, गूगल पे जाके देख सकते हैं, जहां पे लोगों को इतने चमत्कारी प्रभाव मिले हैं, चमत्कारी रूप से चीजें बदली हुई मिली है, लाइफ पूरी बदल चुकी है, कि अब वो ये बोलते हैं कि ये हमें बचपन में क्यों नहीं मिला। जो लोग इस वर्कशॉप में आते हैं वो सिर्फ यही बोलते हैं कि ये तकनीकी तो हमें स्कूल में सिखानी चाहिए थी, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तब ये संस्कार आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं, पर जब आप एडल्ट हो जाते हैं, इन्हीं संस्कारों के साथ जीवन जीते चले आ रहे हैं, तो अब आपको लगता है यू कांट हैंडल योर लाइफ। इसलिए ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी तकनीकी हम स्कूल्स में लेकर जा रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में लेकर जा रहे हैं, ताकि जो लोग स्ट्रेस में अपना जीवन जीते हैं, एंजाइटी, वरी, डिप्रेशन, आजकल डिप्रेशन स्कूल्स में है। कैन यू इमेजिन, 5 साल के बच्चे को शायद मतलब भी ना पता हो कि डिप्रेशन क्या होता है, बट वो यूज करता है आई एम डिप्रेस्ड। सो दिस हैज चेंज माय लाइफ। मुझे 12 साल हो चुके हैं। दीपिका, आपको कितना टाइम हुआ है? मुझे एक्सेस तक पहुंचते पहुंचते मतलब मुझे 2 साल हुए हैं, एंड मेरा यही था कि अभी तक ये कहाँ था, मुझे क्यों नहीं मिला। करेक्ट, यस, करेक्ट। स्कूल में क्यों नहीं मिला? स्कूल में क्यों या नहीं मिला? मुझे इतना टाइम क्यों लग गया। एंड करेक्ट। काफी सारी चीजें अगेन मैं कहूंगी कि गले से नीचे उतरना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जब हम करेंगे इसे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बाहर की दुनिया में हम इतना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने ऊपर थोड़ा सा जब हम इन्वेस्ट करेंगे और विश्वास करके देखेंगे कि इससे मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्या न्यू रियलिटी क्रिएट हो रही है, बदलाव नहीं कहूंगी मैं, मेरी क्या नई रियलिटी क्रिएट हो रही है ना। ऐसा नहीं कि बाहर की जिंदगी पूरी बदल जाती है, पर आप जिंदगी को हैंडल बहुत अलग तरीके से करते हैं, और फिर आप ये भी देखेंगे कि बाहर की जिंदगी भी बदलने लगती है। बिल्कुल, इसलिए बाहर की जिंदगी बदलती है, और बिल्कुल चमत्कारी ढंग से बदलती। जो मेरे पार्टिसिपेंट्स ने कई बार बोला है, जो जिन लोगों से उनको तकलीफ थी, स्पेशली रिश्ते नातों में, फैमिली में, उन्होंने अपनी चीजें बदल ली, अपना नजरिया बदल लिया, अपने जो सारी अटकी हुई चीजें थी उन 32 बिंदुओं में, उनको जब रिलीज किया, तो बाहर का रवैया उनकी तरफ, बाहर के लोगों का रवैया, उनका व्यवहार उनकी तरफ अपने आप बदल गया। एंड सो दे कॉल इट, इट्स अ मैजिक, इट इज मैजिक। सो इट प्लीज कम, वर्क्स मैजिकली। या बिल्कुल, कि आप ये पॉइंट्स छूने से आपकी इतनी सारी लिमिटेशन पॉइंट ऑफ व्यूज बदल जाएं, वो सही में बहुत मैजिकल है। जिन चीजों के लिए शायद हमने लाइफ में लोगों से लड़ा हो, झगड़ा हो, अब वो हमारे लिए हमें बेमानी लगने लगे, है ना। बिल्कुल। तो बहुत बहुत सारे बदलाव आते हैं, और ये अथाह दरिया है एक्सेस कॉन्शियसनेस, जिसके फाउंडर हैं गैरी डगलस एंड को फाउंडर है डॉक्टर जेन हियर। बहुत कुछ है इसमें। एक बार एक्सेस बार्स तो पहला कदम है इसके अंदर आने का, जिसी से इतना कुछ बदल जाता है। और राइट। आपको इंटरेस्ट होगा तो हम आगे और आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे जैसे जीना आई थी तो जीना ने बार्स किए हुए हैं, नुपुर नुपुर ने बार्स किए हुए हैं। ओह तो नाइस। बार्स के बाद और बहुत क्या हो सकता है। आप ये लोग
आप जानते भी होंगे, पर हम और भी शेयर कर सकते हैं आपके साथ. तो I think with this we would like to thank Yes. everyone, Arshia, who's been Yes, here. we would like to Yeah, thank, and I have left my website there. thank you दीपिका, आप so भी डाल much. दीजिए, एंड जो लोग चाहे वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और कुछ और न बदलने के लिए, भले ही अपने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए आप शायद ये Absolutely. जुड़ना चाहें. Okay, thank you so much, everyone, and it was wonderful to have you here. Thank you, Deepika, for being this invitation here. Bye bye. Thank Have a you. great Thanks, evening. everyone. Bye. Bye. And Bye. thank you. Thank you, Arshia. Bye. 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 Bye, Bye. Deepika. Thank you. Bye. Yeah. Thank you. Thank you, Nasir Iqbalji. Thank you so Thank you, much. Nasir. Thank you.